जमअ मवाद का तरीक़ा। तो जमअ मवाद का जो तरीक़ा था वो तो हो गया था हम लोगों का। अब आगे था कि जमअ मवाद के वक्त एक अहम चीज़ आती है कि अगर आपको हवाला लिखना हो तो किस अंदाज में आप हवाला लिखेंगे। तो सबसे पहले उसी को लिख लीजिए, हवाला लिखने का तरीक़ा। देखिए, हवाला लिखने का एक तरीक़ा तो वो है जो हमारे यहाँ बिल्कुल आम है, हम लोग लिखते हैं उसको, लेकिन एक नया तरीक़ा जो है उसको लिख सकते हैं। लिखिए, आप अपनी तहरीर में जिन मसादिर व मराजे का हवाला देंगे, आप अपनी तहरीर में जिन मसादिर व मराजे का हवाला देंगे, या जमअ मवाद करते वक्त उनका हवाला नोट करेंगे, या जमअ मवाद करते वक्त उनका हवाला नोट करेंगे, तो उसका तरीक़ा आजकल ये राइज है। तो उसका तरीक़ा आजकल ये राइज है सबसे पहले मुसन्निफ की निस्बत लिखते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ की निस्बत लिखते हैं, फिर उसका नाम, फिर उसका नाम, फिर किताब का नाम, फिर किताब का नाम, फिर जिल्द नंबर, फिर जिल्द नंबर, फिर सफ़ा नंबर, फिर जिल्द नंबर, फिर सफ़ा नंबर, फिर मतबूआ का नाम, जिसका रम्ज तो इस्तेमाल होता है। तो यानी तो लगा के फिर आगे नाम लिखेंगे तो कारी समझ जाएगा कि मतबा का नाम है ये। फिर मतबूआ जिसका रम्ज तो है, तो इस्तेमाल होता है। आखिर में सने तबाअत लिखा जाता है। आखिर में सने तबाअत लिखा जाता है। तो सबसे पहले मुसन्निफ की निस्बत लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर किताब का नाम लिखेंगे, फिर जिल्द नंबर और फिर सफ़ा नंबर। देखिए, जिल्द नंबर सफ़ा नंबर के लिए आजकल क्या करते हैं, स्लैश का निशान लगा के लिख देते हैं। जैसे मतलब लिखना है को कि सफ़ा नंबर 144 जिल्द नंबर 2, तो इस तरीके से लिखते हैं। जिल्द 2 इस तरह लिखेंगे, सफ़ा 144। समझ रहे हैं? तो 144 सफ़ा हो गया और जिल्द 2 हो गई। तो जिल्द को पहले लिखते हैं, फिर स्लैश निशान देते हैं, फिर उसके बाद सफ़ा नंबर डालते हैं। तो वो करते हैं। उसके बाद आखिर में तो लगाते हैं मतबा के लिए कि जैसे जकरिया से शाये है तो तो जकरिया, सईदिया से शाये है तो सईदिया, एचएम सईद कंपनी से है तो एचएम सईद कंपनी लिख देते हैं। दारुल कुतुब अल इल्मिया से शाये है तो क्या लिख देते हैं, तो दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत। देखिए, मसलन अगर आपको उम्दतुल कारी का हवाला देना है,
مثلاً اگر آپ کو عمدۃ القاری کا حوالہ دینا ہے تو اس کا حوالہ اس طرح لکھا جائے گا، تو اس کا حوالہ اس طرح لکھا جائے گا، العینی 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 بدر الدین بدر الدین عمدۃ القاری عمدۃ القاری. اب جلد نمبر صفحہ نمبر لکھے ہوئے سلیش کے انداز میں، جلد 10 صفحہ 410 اسی انداز میں لکھیے اس طرح، یہ جلد 10 صفحہ 410 دیکھا آپ نے؟ العینی بدر الدین عمدۃ القاری جلد 10 صفحہ 410. اب تو لکھیے، تو دار الکتب العلمیہ بیروت. دار الکتب یعنی کتاب شائع کہاں سے ہوئی ہے؟ جس نسخے سے آپ نے استفادہ کیا ہے وہ انڈین نسخہ نہیں ہے بلکہ دار الکتب العلمیہ کا نسخہ ہے. تو دار الکتب العلمیہ بیروت. اب آگے سن تباد لکھ دیجئے، سن 2015، سن 2015 لکھ دیجئے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایسے اگر آپ کو ابن حجر عسقلانی کی کتاب کا نام لکھنا ہے تو العسقلانی احمد ابن حجر لکھیں گے، آگے لکھیں گے فتح الباری جلد نمبر صفحہ اور پھر صفحہ نمبر لکھیں گے، پھر کیا کہتے ہیں کہاں سے کتاب شائع ہوئی وہ لکھ دیں گے. تو یہ ایک لیٹسٹ طریقہ نکلا ہوا ہے آج کل. زیادہ تر جو عربوں کی جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں، بطور خاص جو تحقیقی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، تو ان میں یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. پیراگراف چینج کریے، لکھیے لکھیے حوالہ لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، حوالہ لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مصنف کا نام اور کتاب بہت مشہور ہو، کہ اگر مصنف کا نام اور کتاب بہت مشہور ہو تو ناموں کا اشارہ کافی ہوتا ہے. تو ناموں کا اشارہ کافی ہوتا ہے. البتہ جلد نمبر، صفحہ نمبر اور باب کا نام ضرور لکھنا چاہیے. جلد نمبر، صفحہ نمبر اور باب کا نام ضرور لکھنا چاہیے. ضرور لکھنا چاہیے. مثلا بتائیے ابن حجر عسقلانی کی کون سی کتاب مشہور ہے؟ ابن حجر عسقلانی بہت مشہور ہیں. ان کی کون سی کتاب مشہور ہے زیادہ، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے؟ جی، فتح الباری. بالکل. تو آپ کیسے لکھیں گے؟ الفتح لابن حجر. کیا لکھیں گے؟ الفتح لابن حجر. مطلب کیا نکلا؟ الفتح سے مراد فتح الباری اور ابن حجر سے مراد احمد ابن حجر. الفتح لابن حجر جلد 10 صفحہ 440، جلد 10 صفحہ 440. باب الصلاۃ بعد العصر. ابھی دیکھنا نہیں، وہاں لکھے ملا نہیں ملے گا، مثال لکھا رہا ہوں خالی آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ 10ویں جلد میں باب الصلاۃ بعد العصر کی کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ وہ تو پہلی دوسری جلد کے اندر ہونا چاہیے. ایک مثال کے طور پہ بتایا آپ کو، ٹھیک ہے؟
अच्छा, अल्लामा शामी की मशहूर किताब कौन सी है? अल्लामा शामी की मशहूर किताब कौन सी है? किसी को नहीं मालूम है क्या? रद्दुल मुख्तार। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? अर्रद लिशामी, अर्रद लिशामी, जिल्द 3, सफ़ा 313, जिल्द 3 सफ़ा 313, बाब सुजूद सहवी। अरे राहिल लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बहुत हिल रहे हो, क्या बात है? दिखाओ कहा भी। मौलाना राहिल साहब देखें कहाँ लिखे हो, दिखाओ, लिखा हुआ दिखाओ। हाँ माशाल्लाह, काफी बुजुर्ग आदमी मालूम होते हैं। इनकी बुजुर्गी में जो शक करे वो भी बुजुर्ग है। चलिए, अच्छा ये तो हो गया, पैराग्राफ चेंज करिए। तो दो तरीके मालूम है ना आपको, कि एक अरबों के यहाँ जो अमूमी तरीका चल रहा है, अपने हिंदुस्तान में जो चल रहा है अभी अभी चलन इसका हो गया है कि पहले निस्बत लिखते हैं, फिर मुसन्निफ का नाम, फिर किताब का नाम, इला आखिरी ही। और दूसरा तरीका ये कि अगर किताब और मुसन्निफ दोनों बहुत मशहूर हों तो इशारे में काम चल जाता है, पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पेश आती है। समझ रहे हैं? अब लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। अगर एक ही नाम की कई किताब हो, अगर एक ही नाम की कई किताब हो, तो मुसन्निफ के नाम का जिक्र करना जरूरी होता है। तो मुसन्निफ के नाम का जिक्र करना जरूरी होता है। जैसे अल अशबाह वन नज़ायर के नाम की कई किताबें हैं, समझ रहे हैं? अल अशबाह वन नज़ायर एक किताब इब्ने नुजैम मिस्री की भी है, एक जलालुद्दीन सयूती की भी है, एक ताजुद्दीन सुबकी की भी है, एक इब्ने वकील शाफी की है। अब एक ही नाम से चार किताबें हैं। उर्दू में देखिए, खुतबात बिंगलौर, खुतबात बिंगलौर एक मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की है, एक मौलाना सलमान हुसैन नदवी साहब की है, और एक शायद किसी और साहब की है। ऐसे ही पाजा सुराग जिंदगी, पहले सिर्फ मौलाना अली मियां नदवी साहब की थी, अब फिर जुल्फिकार साहब की भी किताब आ गई। तो अब पाजा सुराग जिंदगी का आपने हवाला दिया, तब कौन सी मुराद है? बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही साहब? हाँ, तो अगर एक ही नाम की कई किताब हो तो मुसन्निफ के नाम का जिक्र जरूरी हो जाता है। जैसे अल अशबाह वन नज़ाइर, इस नाम से इब्ने नुजैम की भी है। जैसे अल अशबाह वन नज़ाइर, इस नाम से किताब इब्ने नुजैम की भी है, जलालुद्दीन सयूती की है, जलालुद्दीन सयूती की है, ताजुद्दीन सुबकी की है, ताजुद्दीन सुबकी की है, इब्ने वकील शाफी की भी है। तो अगर आपको इब्ने नुजैम की किताब का हवाला देना है तो क्या लिखेंगे? अगर आपको इब्ने नुजैम की किताब का हवाला देना है तो क्या लिखेंगे? अल अशबाह वन नज़ाइर लिब्न नुजैम, अल अशबाह वन नज़ाइर लिब्न नुजैम। अब यहाँ पर नाम का इशारा करना जरूरी होगा। अल अशबाह वन नज़ाइर लिब्न नुजैम, जिल्द 1 सफ़ा 103, जिल्द 1 सफ़ा 103। अब कहाँ से शाये है वो भी लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। मकतबा जकरिया देवबंद, मकतबा जकरिया देवबंद।
ایک اہم بات اور لکھیں، پیراگراف چینج کریے، لکھیے ایک بات اور لکھے ہیں، اگر آپ نے ایک ہی مطبوعہ سے استفادہ کیا ہے، یعنی آپ نے مان لیا دارالکتب العلمیہ بیروت کے نسخے سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا نسخہ استعمال نہیں کیا ہے، تو اگر آپ نے ایک ہی مطبوعہ کے نسخے سے استفادہ کیا ہے تو ایک جگہ مطبوعہ لکھ دیں اور سن بیان کر دیں، پہلی جگہ جہاں پر آئے وہاں پر مطبوعہ لکھ دیں، سن بیان کر دیں، ایک جگہ مطبوعہ لکھ دیں اور سن بیان کر دیں کہ یہ فلاں جگہ سے شائع ہوئی ہے اور فلاں سن میں شائع ہوئی ہے، پھر مصادر و مراجع میں اس کی تفصیل لکھ دیں، آخر میں جو مصادر و مراجع لکھتے ہیں نا، تو مصادر و مراجع میں اس کی تفصیل لکھ دیں کہ کون سی کتاب ہے، مصنف کون ہے، کہاں سے شائع ہوئی، کس سن میں شائع ہوئی ہے، ہر جگہ پوری تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی جگہ جہاں پر آئے وہاں تفصیل لکھ دیں اور آخر میں مصادر و مراجع جہاں پر لکھیں گے وہاں تفصیل لکھ دیجئے، پھر بیچ میں چاہے اس کے 10 حوالے آئے، 20 حوالے، 50 حوالے آئے، ہر جگہ پوری تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قاری سمجھ جائے گا پہلی جگہ پڑھ کر کہ اسی نسخے سے استفادہ کیا گیا ہے اور آخر میں پڑھ کے استفادہ سمجھ جائے گا کہ فلاں جگہ فلاں نسخے سے استفادہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا نسخہ چینج ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے، پھر وہاں پر آپ کر دیجئے زکریہ کے نسخے میں نے اس عبارت کو لیا ہے یا کسی اور نسخے سے، تو یہ باتیں بہت اہم تھی حوالے سے متعلق۔ حوالہ لکھنے کا 2 طریقہ آپ کو ہم نے بتایا، اور مصنف ایک ہی نام کے کئی لوگوں کی تصنیف ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور اگر پوری تفصیل اگر آپ کو لکھنی ہے تو صرف 2 مقامات پر، پہلی جگہ پر اور آخر میں مراجع و مصادر میں لکھ دینا کافی ہے، ہر جگہ پوری تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی؟ اچھا، اب آتے ہیں تحریر کی تصوید، یعنی اپنی کتاب جب آپ نے مضمون سلیکٹ کر لیا، حوالہ آپ نے کے ساتھ اس کی عبارتیں آپ نے اتار لی ہیں اور آپ کا مواد تیار ہو گیا ہے، اب مواد تیار ہونے کے بعد سب سے بڑا مرحلہ آتا ہے کہ اس کو ہم مسودہ کیسے بنائیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسودہ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز میں سیاہی گھول کے منہ پہ لگا لیجیے، آدمی کا مسودہ ہو گیا سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسودہ نہیں ہے، وہ تو مسودہ ہو جائے گا، تو مسودہ کیسے آپ تیار کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو لکھا رہا ہوں، عنوان ڈالیے تحریر کی تصوید کا طریقہ، تحریر کی تصوید کا طریقہ، آپ کی جمع شدہ جو عبارت ہے اس سے کیسے مسودہ تیار کریں گے، لکھیے لکھیے عنوان منتخب کر لینے اور مواد جمع کر لینے کے بعد، عنوان منتخب کر لینے اور مواد جمع کر لینے کے بعد اب نمبر آتا ہے کہ تحریر کو مسودے کی شکل کیسے دی جائے، تحریر کو مسودے کی شکل کیسے دی جائے، دیکھیے آگے لکھیے تحریر کی تصوید میں، تحریر کی تصوید میں، تصوید یعنی مسودہ تیار کرنا، تحریر کی تصوید میں بنیادی طور پر جو بات ہوتی ہے، بنیادی طور پر جو بات ہوتی ہے کہ آپ کے مطالعے کا جو نچوڑ کاپی میں تیار ہوا ہے، یعنی جتنا آپ نے مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کرتے چلے گئے، اس کے بارے نوٹ کرتے چلے گئے، تو وہ نچوڑی سے تیار ہوا،
भाई आपने 10 सफ़ा मुताला किया तो 10 सफ़ा थोड़ी कापी में लिखते हो आप। 10 सफ़ा में से जो अहम अहम इबारतें थी, अहम अहम दलाइल, तो उन्हीं को तो आपने लिखा है। 10 सफ़ा तो नहीं कर लिया। आपने किसी किताब के 50 सफ़ात पढ़े तो क्या 50 उतार लेते हैं? 50 ने उससे जो निचोड़ आपने तैयार किया, जो उसूल आपने अफ्ज किए हैं, जो आपने इबारतें अफ्ज की हैं, वो मुराद है। तो आपके मुताले का जो निचोड़ तैयार हुआ है और आपकी कापी में महफूज है, और आपकी कॉपी में महफूज है, किस कापी में? वो वाली कापी, वो क्या कहते हैं, जमे मवाद वाली, समझ रहे हैं? जमे मवाद वाली जो कापी जिसमें आपने अनावीन किए थे, फिर उसमें इबारत आपने जमा करना शुरू की थी, वो कापी मुराद है। आपकी कापी में महफूज है, उसकी रोशनी में, उसकी रोशनी में पूरी शरहो बस्त के साथ, उसकी रोशनी में पूरी शरहो बस्त के साथ अपने माफी ज़मीर को उन इबारतों की रोशनी में, उन दलाइल की रोशनी में, उन तनक़ीहात की रोशनी में, अक़वाल की रोशनी में, जो भी चीज़ आपने जमा की थी, उनकी रोशनी में अपने माफी ज़मीर को कलम के ज़रिए कापी में उतार दें। समझ रहे हैं? ये आपको मुसव्वदा तैयार होगा। जो कुछ आपने मुताला किया है, जो कुछ आपने जमा किया है, उसको आप कापी में तरतीब के साथ, पूरी शरह बस्त के साथ, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसको अपनी कापी में आप शरह बस्त के साथ उतारेंगे। ये क्या हो जाएगा? इस तरह आपका मुसव्वदा तैयार होगा। आपने मुताला कर रखा है, आपने दलाइल जमा कर रखे हैं, आपने बातें जमा कर रखी हैं, इन सब की रोशनी में अब आपके जहन में जो कुछ पैदा हो रहा है, जो कुछ आ रहा है, उसको सलीके के साथ, शरह बस्त के साथ अपनी कापी में लिखते चले जाएंगे। जब लिखते चले जाएंगे तो यही क्या है? मुसव्वदा बनता चला जाएगा। ठीक है? यही क्या बनता चला जाएगा? मुसव्वदा बनता चला जाएगा। अलबत्ता इसमें चंद बातों का लिहाज रखना जरूरी होगा। अलबत्ता इसमें चंद बातों का लिहाज रखना जरूरी होगा। नंबर 1, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। नंबर 1, मुसव्वदा समझ में आया ना? मुसव्वदा कैसे तैयार होता है? जो कुछ आपने पढ़ रखा है, जो कुछ मुताला कर रखा है, जो कुछ आपकी कापी में महफूज है मवाद वाली, उसको सलीके के साथ, पूरे शरह बस्त के साथ, अपनी माफी ज़मीर को कलम के जरिए से कापी में उतारना, यही क्या है? मुसव्वदा बनाता है। यही आपकी किताब तैयार होती है। लेकिन इसमें चंद बातों का आप लिहाज रखेंगे। नंबर 1, जब आप अपनी तहरीर लिख रहे हो, जब आप अपनी तहरीर लिख रहे हो, तो कोशिश ये हो कि जुबान आसान और सादा हो। समझ रहे हैं? कोशिश ये हो कि जुबान आसान और सादा हो। अब आप तकातुरे अमतार करने लगेंगे तो कितना मुश्किल होगा। तकातुरे अमतार, शबनम बेज हवाएं, समझ रहे हैं, इत्र बेज फजाएं, कुमार आलूद आंखें, तो इस तरह लिखोगे तो भैया हम जैसा जाहिल आदमी कहाँ समझ पाएगा। समझ रहे हो ना? तो क्या है? जुबान आसान और सादा हो, मुश्किल अल्फाज और लंबी तरकीब से बचना चाहिए। मुश्किल अल्फाज, मुश्किल अल्फाज और लंबी तरकीब से बचना चाहिए। जैसे कुछ लोग लिखते हैं ना, मुश्किल मुश्किल अल्फाज ढूंढ ढूंढ लाते हैं, शबे दैजूर। अब वो गांव का आदमी शब क्या जाने, दैजूर क्या जाने। एक साहब तो किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि पिराना साली, तो दूसरे साहब कह रहे कि साली तो समझ में आ रहा है, कैसा कहते हैं, पिराना क्या ये नहीं मालूम है। तो तीसरा कह रहा है कि साली की शादी पिराना गांव में हुई मुराद है। तो इस तरह के अल्फाज मत देखिए कि लोग धोखा खा जाए। पिराना साली, तो क्या बताया कि मुश्किल अल्फाज और लंबी तरकीब से बचना चाहिए, गैर मानूस मुहावरे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
غیر مانوس محاورے استعمال نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہر کس و ناکس آپ کی تحریر کو سمجھ سکے، تاکہ ہر کس و ناکس آپ کی تحریر کو سمجھ سکے۔ ہمارے مولانا ولی رحمانی صاحب بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو تحریر لکھیں، تحریر ہمیشہ آسان لکھیے، سہل نہیں، تحریر ہمیشہ آسان لکھیے، سہل نہیں، اس لیے کہ سہل لفظ بھی ایک مشکل لفظ ہے سہل لفظ بھی ایک مشکل لفظ ہے، تو کہتے تھے کہ تحریر ہمیشہ آسان لکھیے، سہل نہیں، حالانکہ مقصد ایک ہے لیکن الفاظ میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ثقالت پیدا ہوتی ہے زبان میں۔ تو بہرحال پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ تحریر لکھ رہے ہوں، چاہے مقالہ لکھیں چاہے کتاب لکھیں، آپ کے الفاظ جو ہیں سادہ ہوں، سلیس ہوں، شگفتہ ہوں، اور بہت لمبی لمبی ترکیب ہے کہ مبتدا پہلے صفحے میں، خبر 3 صفحے کے بعد آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھیے، مبتدا معلوم ہے کہ 15ویں لائن کے اندر ہے، اور خبر کیا آ رہی ہے 15 لائن کے بعد آ رہی ہے، اب اصلی سمجھ نہیں پاتے اس میں کہاں سے بات شروع کہاں ختم ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اندر اگر جملہ معترضہ آ جائے تو وہ بھی ایک لمبا لمبا جملہ معترضہ بھی ہوتا ہے، کم سے کم آدھ صفحے کا جملہ معترضہ آتا ہے۔ وہ مولانا علیمیہ کا اپنا وہ تھا، مزاج تھا، عمومی طور پر اس سے بچنا چاہیے اس طرح کی تحریروں سے، اس لیے کہ عام آدمی مولانا علیمیہ کی تحریر سے نہیں پڑھ پاتا ہے، مولانا منظور نعمانی کی تحریر ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، شیخ زکریا کی فضائل اعمال ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، اس لیے کہ ترکیبیں چھوٹی چھوٹی ہیں، آسان الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو استفادہ آسان ہے اس سے۔ نمبر 2، جس فن سے متعلق آپ لکھ رہے ہیں، جس فن سے متعلق، دیکھیں فنون الگ الگ ہوتے ہیں، اب آپ فن فقہ پہ آپ لکھ رہے ہیں، اب فن فقہ پہ لکھنے کے لیے اب شعر و شاعری کرنے لگے تو کتنا خراب لگے گا، اور اگر آپ کیا کہتے ہیں فن ادب پر لکھ رہے ہیں اور عموم خصوص من وجہن، عموم خصوص مطلق کے الفاظ استعمال کریں گے تو آدمی کیا کہے گا، تو اب جو ادب کی زبان ہوتی ہے اس کو ادبی انداز میں لکھیں گے، جو نحو صرف کی زبان ہوگی اس کو نحوی صرفی انداز میں لکھیں گے، تو یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے، جس فن سے متعلق آپ لکھ رہے ہیں اس میں تعبیر اور اظہار کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تعبیر اور اظہار کے لیے ضروری ہے کہ اس فن کا اپنا مزاج باقی رہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ جو قانونی کتابیں ہوتی ہیں، قانونی کتابوں کو آپ ادبی انداز میں لکھیں گے تو قانونی کتابوں کا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ منطق و فلسفہ کی جو کتابیں ہیں آپ اس کو فقہ کے انداز میں لکھیں گے مسئلہ کرکرا جائے گا۔ تو ہر فن کا اپنا کیا ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، ایک اس کی خاص اصطلاحات ہوتے ہیں، ٹرمنالوجی ہوتی ہے، اس سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، تبھی اس فن کا مزہ باقی رہ پائے گا، ورنہ آپ اس کو بے مزہ بنا دیں گے، تو اس فن کا اپنا مزاج باقی رہے۔ مثلاً آپ ادبی تحریر لکھ رہے ہیں، آپ کو لکھنا ہے عمران جاؤ ادا کی فنکاری پہ، تو ظاہر سی بات ہے عمران جان ادا پر لکھنے کے لیے آپ کو ایسے الفاظ چاہیے نا۔ مثلاً آپ ادبی تحریر لکھ رہے ہیں تو اس میں شوخ جملے، شعراء کے اشعار، شوخ جملے جانتے ہیں، چٹکیلے، تھوڑا سا نمک مرچا لگا ہوا، یہ سمجھ لیجئے کہ اسپائسی، بالکل موجودہ زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو، وہ چائنیز آئٹم بالکل ہونا چاہیے۔ شعراء کے اشعار، تلمیحات، اشارے و کنایات، طنز و مزاح بہتر اور اچھا معلوم ہوتا ہے، تو ادبی تحریر میں اس طرح لکھیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ کو کوئی اصلاحی مضمون لکھنا ہے، تو اگر آپ کو مسلم نوجوان لڑکیوں کی ارتداد پہ لکھنا ہے تو اس میں آپ اس طرح اشعار لکھیں گے، شوخ جملے لکھیں گے، طنز و مزاح لکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟
तो जाहिर सा नहीं चलेगा। एक मौलाना साहब थे, एक बाकी छोटा मोटा चुटकुला सुनिए। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और कहने लगे कि आजकल की नौजवान लड़कियां हैं, बाजारों में घूमती हैं, पैंट शर्ट पहनती हैं और सीना नजर आता रहता है, रान दिखती रहती है और सर के बाल खोले हुए होते हैं, सारे आदत धड़कते रहते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ कहने लगा, मौलाना साहब तकरीर करिए, मूड मत बनाइए। तो जाहिर सी बात है, आप मस्जिद में इस तरह की तकरीर करेंगे तो नौजवानों का क्या हाल होगा। तो इस तरीके से खुतबा को भी लिहाज रखना चाहिए, तहरीर तक के नहीं है। अगर आप इस्लाही तकरीर कर रहे हैं तो इस तरीके की बातें अगर आप मस्जिद के अंदर करेंगे तो नौजवान क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे कि आप मूड मत बनाइए और तकरीर कीजिए। तो इसलिए इसका सिर्फ तहरीरी से ताल्लुक नहीं है, बल्कि क्या है, खिताबत से भी इसका ताल्लुक है कि आप उसी तरह की बातें करिए जो उस जगह के लिए, उस मौजू के लिए मुनासिब हो। समझ रहे हैं? अच्छी बात। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। ये तो हो गया अदबी अंदाज पे। अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह के जुमले हों, तंज़ो शौकी होनी चाहिए, तहरीर में गुफ्तगू होनी चाहिए, अशार तलमीहात होने चाहिए। लेकिन आप अखलाकी मजमून लिख रहे हैं, लेकिन आप अखलाकी मजमून लिख रहे हैं तो उसमें दिल को मुतासिर करने वाले जुमले, उसमें दिल को मुतासिर करने वाले जुमले, तरहीब व तरगीब के जुमले, तरहीब व तरगीब के जुमले, सलफ़ सालिहीन के वाक़िआत, सलफ़ सालिहीन के वाक़िआत, मुजरिमों और गुनहगारों के इबरतनाक वाक़िआत, मुजरिमों और गुनहगारों के इबरतनाक वाक़िआत का लिखना अच्छा मालूम होता है। देखिए, अब तहरीर दोनों तहरीर है, लेकिन कितना फर्क हो जाता है। वो पहली जो तहरीर थी आपकी अदबी थी, उसमें हर तरह की चीज चलती थी, और ये आपकी क्या अखलाकियात से मुताल्लिक मजमून है। अब इसमें इस तरह की चीज, वो पहले वाली चीज नहीं चलेगी। इसके लिए आपको मुतासर करने वाले जुमले हों, तरगीबी जुमले हों, तरहीबी अहादीस हों, सलफ़ सालिहीन के वाक़ियात हों, बुजुर्गों के वाक़ियात हों, और जो लोग मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, उनके क्या नाम है, इबरत से मुताल्लिक, सजाओं से मुताल्लिक जो चीज़ें वो जिक्र करेंगे। अब ये आपका मजमून क्या है, अच्छा तैयार होगा इस मौजू के एतबार से। तो जिस फन पर आप लिख रहे हो, जिस मौजू पर आप लिख रहे हो, उसको मलहूज रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक दो बात। नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 ये भी बहुत अहम चीज है। तहरीर में तूल नवीसी से हत्तल इम्कान बचना चाहिए। तूल नवीसी, लंबा लंबा लोग लिखते हैं। आज देखो फेसबुक पे लोग इतने बड़े बड़े मजमून लिखते हैं, आदमी सोच रहा है कि कब तक इसको रीड मोर करेंगे हम, और रीड मोर करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, फिर आदमी उठा के रख देता है। तो तहरीर में तूल नवेसी से हत्तल इम्कान बचना चाहिए, क्योंकि तूल नवेसी से पढ़ने वाले को उकताहट होती है, क्योंकि तूल नवेसी से पढ़ने वाले को उकताहट होती है, मजमून की अहमियत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर किसी मकाले में आप 10 आदमियों की बहस नकल करें। आपने उसमें लिखा कि इमाम गजाली का ये कौल है, इब्न तैमिया का ये कौल है, और अबू इसहाक शिराजी का ये कौल है, और इमाम राजी का ये कौल है, जस्सास का ये कौल है, अल्लामा इसकाफ का ये कौल है, फलां का ये कौल है, सबने लिखा आपने। तो आप 10 आदमियों की बहस नकल करें और हर एक की बात का हासिल एक ही हो, हर एक की बात का हासिल एक ही हो। मसलन सब अदम जवाज ही के कायल हैं, ठीक है,
इमाम खस्साब भी कहते हैं कि नाजायज़ है, इमाम तहावी भी कहते हैं नाजायज़ है, इब्न जरीर तबरी भी कहते हैं नाजायज़, इब्न तैमिया भी कहते हैं नाजायज़ है। तो 10 लोग नाजायज़ होने के कायल हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो जायज़ होने के कायल हैं। ठीक है, तो आपने 10 आदमियों का कौल एक तरफ नकल किया है और 5 का एक तरफ नकल किया है। ठीक है, तो बहस नकल करें और हर एक की बात का हासिल एक ही हो तो 10 की बात अलग अलग नकल करने की जरूरत नहीं होती है। 10 की बात अलग अलग नकल करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि किसी एक की राय नकल कर दें। आपने लिख दिया कि इमाम तहावी की राय ये है, ठीक है, बल्कि किसी एक की राय नकल कर दें और बाकी की राय यही है और ये लिख दें कि फला फला की राय भी यही है और बाकी के बारे में लिख दें कि फला फला की राय भी यही है। तो देखिए आपके 10 लाइन बच गई कि नहीं बच गई? 10 लाइनों की भी बच गई और 10 लोगों की जो अपने अपने जिनका खुलासा एक ही निकलता था वो बोझ भी कम हो गया। तो एक की राय नकल करे, बाकी कहते फला फला की इब्न तैमिया, अहमद इब्न हम्बल और इब्न क़य्यिम और इब्न इब्न जौज़ी, इन हजरात की भी राय यही है। तो अब देखिए जिस चीज को आप बहुत तूल कर सकते थे उसको आपने मुख्तसर किया, पढ़ने वालों को पूरा मवाद हासिल हो गया। तो इस तरीके से तूल नवेसी को अपने आप को बचाइए और जहां तक हो सके मुख्तसर तहरीर हो, जामे तहरीर हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें आए तो सबकी राय नकल करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कभी ऐसा हो कि उसमें 2-3 की बात ऐसी है जो उसमें कोई नई बात भी लिखी जा रही है, जैसे सबने लिखा कि नाजायज है लेकिन किसी ने लिखा कि नाजायज है, बता ये सूरत मुस्तस्ना है, तो उसकी राय को आप बाज़ाब्ता नकल कर दे। तो 9 की राय एक तरीके से है तो 10 की राय एक तरीके से, लेकिन एक ने एक बात पे इजाफा कर रखा है तो उसको आप एक्सप्रेशन के तौर पर, इस्तिस्ना के तौर पर नकल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके तहरीर में जान पैदा होगी, आपकी तहरीर मकबूल होगी, लोग उसे पढ़ेंगे। तो 3 बातें हो गई। तीसरी बात क्या मैंने लिखाई कि तहरीर में तूल नवेसी से आदमी को इज्तिनाब करना चाहिए, बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, उसको समेटने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, अपनी तहरीर का तमहीदी हिस्सा, ये अपनी काट दीजिए, ये लिखिए, तहरीर का तमहीदी हिस्सा बड़ी खुसूसियत का हामिल होता है। जहां से आपकी किताब शुरू हो रही है, जहां से आप अपनी तमहीद शुरू कर रहे हैं, वो बहुत अहम का होता है। क्या कहते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरू का अगर आपने अच्छा लिख दिया है तो आदमी क्या आगे बढ़ता चला जाता है, ये तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। और शुरू ही में अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो कह रहे यार तो किसी मतलब एक किताब ने क्या से क्या लिख रखा है। तो अपने जो तहरीर है, तहरीर का जो तमहीदी हिस्सा होता है बड़ी खुसूसियत का हामिल होता है। इसलिए तमहीद में जुबान व बयान को जहां तक मुमकिन हो बेहतर बनाना चाहिए। इसलिए तमहीद में जुबान व बयान को जहां तक मुमकिन हो बेहतर बनाना चाहिए ताकि कारी को पढ़ने में लुत्फ हासिल हो। तो ये 4 बातें बहुत अहम थी कि आप जब मुसव्वदा तैयार कर रहे हो, अपने माफी ज़मीर को कलम के जरिए से नोट उतार रहे हो, तो फिर जुबान की सलासत को, जुबान उस फन के मिजाज को मद्देनजर रखें, तूल नवेसी से इज्तिनाब करें, तमहीदी हिस्से को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये 4 बातें अपने मुसव्वदे में आप जरूर मद्देनजर रखें ताकि आपका मुसव्वदा एक शानदार अंदाज में, बेहतर अंदाज में, हसीन मुरक्का की शक्ल में तैयार हो। ठीक है, अब ये आपका मुसव्वदा तैयार हो गया। मुसव्वदा कैसे तैयार हुआ? जो कुछ आपने मुताला कर रखा था, जो कुछ आपने पढ़ रखा था, जो कुछ मवाद आपकी कापी में जमा था, उसी की रोशनी में अपने अपने माफी ज़मीर को कलम के जरिए से कापी पर आपने उतार दिया है। ये क्या बन गया? आपका मुसव्वदा तैयार हुआ। ठीक है, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुसव्वदा के बाद आता है मुबय्यज़ा का नंबर आता है। मुबय्यज़ा यानी इस मुसव्वदे पर भी नजर सानी करना, उस मुसव्वदे पर भी काट छाट करना, उसको आखिरी शक्ल देना, उसको साफ करना। कहाँ अल्फाज ताबीर में गलती हो गई है, कहाँ तज़किर तानीस की गलती हो गई है, कहाँ एराब की गलती हो गई है, कहाँ दलील को नकल करने में गलती हो गई है, कहाँ पे हवाला छूट गया है।
समझ रहे हैं, कहाँ पर क्या कहते हैं रुमूज़ तहरीर में कमी पाई जा रही है, इस तरह की जितनी खामियां रह गई हों, या कहाँ ऐसा है कि आपका नुक्ते नज़र सही तौर से वाजे नहीं हो पाया है, आप कहना कुछ चाह रहे थे लिख कुछ गया है, या आपके जहन में उस तहरीर से मुतालिक एक दूसरा अच्छा मवाद आ गया है, उसको आप कुछ कम करके उसको शामिल करना चाहते हैं। खुलासा ये है कि आपके मुसव्वदे में जो भी कमियां आपको बाद में नजर आ रही हैं, उन कमियों को दूर करके पाक साफ करना, इसको क्या बोलते हैं, मुबैयजा। इसको क्या बोलते हैं, तबईज। मुबैयजा तैयार करना, तबईज करना। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? मुसव्वदा के अंदर जो भी तहरीरी एतबार से, लिसानी एतबार से, तज़किर व तानीस के एतबार से, रुमूज़ औक़ाफ़ के एतबार से, मवाद के एतबार से, नक़ल इबारत के एतबार से, हवाले के एतबार से, सलासत व रवानी के एतबार से, तफ़हीम व तशरीह के एतबार से जो भी कमी रह गई हो उसको पूरा करना मुसव्वदा तमीज़ है। एक मिनट रुकिए फिर पढ़ाते हैं। हाँ तो चलिए ये लिखिए, तहरीर की तबईज का तबईज, तहरीर की तबईज। अपनी तहरीर का मुसव्वदा तैयार हो जाने के बाद, अपनी तहरीर का मुसव्वदा तैयार हो जाने के बाद सबसे अहम काम उसका मुबय्यज़ा तैयार करना होता है। सबसे अहम काम उसका मुबय्यज़ा तैयार करना होता है। होता है। तमीज़ का मतलब ये होता है, या तमीज़ का मतलब ये है, लिखिए, तमीज़ का मतलब ये है कि मुसन्निफ अपनी तहरीर को एक हद तक मुबय्यज़ा कैसे लिखें। जैसे आप अंडा की अरबी लिखते हैं, अंडे की अरबी कैसे लिखी जाती है, बैज़ा माने अंडा, उसी से मुबय्यज़ा बना हुआ है। जाल से मुबय्यज़ा मत लेना वरना तुम्हें खुद अंडा देना पड़ जाएगा। तमीज़ का मतलब ये होता है अपनी तहरीर को एक हद तक साफ और आखिरी शक्ल देना। हाँ, आखिरी शक्ल देना, और हर तरह की कमी को दूर करना, और हर तरह की कमी को दूर करना। जैसे तज़कीर व तानीस, तज़कीर व तानीस, जुमले की साख्त, तशरीह कमी, तशरीह तफहीम की कमी, हवाला जात की मुराजात, हवाला जात की मुराजात, नकल इबारत में छूट छाट, नकल इबारत में छूट छाट, नकल इबारत में छूट छाट वगैरह, वगैरह, इन तमाम कमियों को मुबय्यज़ा में दूर कर दिया जाता है। इन तमाम कमियों को मुबय्यज़ा में दूर कर दिया जाता है।
इस सिलसिले में दर्ज झैल बातों का लिहाज रखना निहायत जरूरी है। इस लैपटॉप पर इस सिलसिले में दर्ज झैल बातों का लिहाज रखना जरूरी होता है। नंबर 1, अरबी और उर्दू में लिखते वक्त अरबी और उर्दू में लिखते वक्त सफ़ा के दाएं जानिब 1.5 इंच, सफ़ा के दाएं जानिब 1.5 इंच। पहले जो फैज वगैरह की कापियां उर्दू की आती थी उसमें ऑटोमेटिक जगह छोड़ी रहती थी 1.5 इंच की। अब चूंकि अक्सर हिंदी कापियां आती हैं तो उसमें बाएं जानिब छोटा रहता है। तो सफ़े के दाएं जानिब 1.5 इंच और बाएं जानिब 1 इंच और बाएं जानिब 1 इंच। सफ़े के बालाई जानिब 1.25 इंच, यानी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है। जो रजिस्टर साइज कापियां आती है उसमें देखिए ऑटोमेटिक चीज बनी होती है। सफ़े के बालाई जानिब 1.25 इंच और नीचे आधा इंच जगह छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, यानी जब आप सफ़ा पे लिखें, आप जो सफ़ा तैयार करेंगे अपने लिखने के लिए, तो आपका जो पूरा मैटर रहेगा, जो पूरा जो आपका मुसव्वदा मुबय्यज़ा रहेगा, वो बीच के अंदर रहेगा। दाहिने जानिब भी जगह छोड़ेंगे आप, बाएं जानिब भी जगह छोड़ेंगे आप, ऊपर भी सब जगह छोड़ेंगे, नीचे भी। जैसे हम तमरीर फतावा कराते हैं ना, तो तमरीर फतावा हम कैसे कराते हैं? दोनों जानिब छोड़वाते नहीं छोड़वाते हैं। दाहिने जानिब भी छोड़ना है, बाएं जानिब भी छोड़ना है, और ऊपर नीचे तो जगह छुटी हुई होती है, कापी के अंदर ऑटोमेटिक रहती है। तो अरबी और उर्दू जब लिखेंगे तो आप सफ़े के दाएं जानिब 1.5 इंच की जगह होनी चाहिए। उसकी वजह क्या होती है? खुदा ना खास्ता आपकी कापी फट जाए और बाइंडिंग कराने की जरूरत पेश आए, या आपने कापी रख दी, चूहा ने काट दिया ऊपर से या पीछे से काट दिया, तो आपका जो असल मवाद है वो ज़ाय नहीं होगा। समझ रहे हैं? या दीमक लग गई, तो दीमक आमतौर से किनारे से लगती है, तो दीमक लगेगी तो किनारे का हिस्सा ही खत्म होगा। असल मैटर तक पहुंचते हुए, आपके मुसव्वदे तक पहुंचते हुए दीमक को टाइम लगेगा। हो सकता है जब तक आप सोकर बेदार हो जाएं या ख्वाब गफलत से होश में आ जाएं। तो ये इसकी हिकमत होती है। दूसरी ये कि इससे तहरीर में खूबसूरती आती है, और ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से जगह छुटी हुई होती है, तो वो एक मुसव्वदे की शक्ल उसके अंदर पैदा हो जाती है। वरना आप ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक लिखते आएंगे तो समझ ही में नहीं आएगा किताब है या आपने रफ कर रखा है कोई चीज इसमें। तो मुबय्यज़ा जब तैयार करेंगे तो मुबय्यज़ा के अंदर ये बात अव्वली नंबर पर मलहूज रखेंगे कि हर तरफ से आप हाशिया जरूर छोड़ें। किताबों की जो तबाअत होती है उसमें भी हाशिए छोड़े जाते हैं, बल्कि उसके अंदर जो दाहिने जानिब का हिस्सा होता है कुछ ज्यादा ही छोड़ा जाता है, क्योंकि वो मशीन से काटते भी हैं, बाइंडिंग में उसकी सिलाई भी होती है, उसके बावजूद भी जगह बच जाती है। तो वो लोग तो ज्यादा छोड़ते हैं, लेकिन आप जब कॉपी में लिखेंगे तो कम से कम 1.25 इंच या 1.5 इंच की जगह जरूर छोड़ेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नंबर 2, पैराग्राफ की पहली सत्र पैराग्राफ की पहली सत्र बाकी सत्रों के मुकाबले में पैराग्राफ की पहली सत्र बाकी सत्रों के मुकाबले में 2 लफ्ज के बकद्र जगह छोड़कर लिखना चाहिए। ठीक है, ये तो कंप्यूटर पे जब आप काम करते हैं तो टैब कर देते हैं, टैब मारिए तो खुद वो जगह दो लफ्ज के बराबर छोड़ के आगे बढ़ा देता है। या आप पैराग्राफ को जब सेट करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें आमतौर से 2 लाइन के बराबर सेट कर देते हैं, तो कंप्यूटर उस हिसाब से लेता रहता है। लेकिन जब आप तहरीर लिखें, चाहे फतावा लिखें, चाहे खत लिखें, चाहे कोई आम सा मजमून लिखें, चाहे किताब लिखें, पहली लाइन में पहली सत्र में मलहूज रहे कि जो पहली सत्र होगी वो 2 लफ्ज के बकद्र आगे बढ़ा के लिखी जाएगी।
बाकी सतरें बराबर होंगी। ठीक है, तो नंबर 2 ये बात हो गई। नंबर 3, मरकजी अनावीन जो आपके होते हैं, मरकजी अनावीन सत्र के बीच में लिखें, सत्र के बीच में लिखें, यानी जो पेज का बीच, सेंटर जिसे बोलते हैं, उसको सेंटर में लिखेंगे। मरकजी अनावीन, जैसे आपने लिखा वजू का बयान, तो अब वजू का बयान आपका मरकजी उन्वान हुआ, इसको कहाँ पे लिखेंगे? बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे, पेज के बीच में, ऊपर की लाइन में। और फिर जब झैली अनामीन लिखेंगे तो उसको दाहिने जानिब, जैसे आपने लिखा वजू का बयान, अब नीचे लिखा कि वजू के फराइज, वजू की शर्तें, वजू की सुन्नतें, वजू के मुस्तहब्बात, कुछ और जरूरी बातें वगैरह वगैरह जो भी लिखे, तो ये झैली अनामीन हो गए। तो जो मरकजी अनामीन होंगे उसको बीच में लिखेंगे, रावीज सत्र के बीच में लिखेंगे, और झैली अनामीन सत्र के दाएं किनारे लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर 2 लफ्ज की जगह छोड़ना जरूरी नहीं है, जहां से आपकी आम लाइन शुरू होती है वहीं से इसको लिखेंगे। इसमें 2 लाइन की जगह 2 अल्फाज की जगह छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो मरकजी अनामीन सत्र के बीच में लिखें, झैली अनामीन सत्र के दाएं किनारे लिखें। मरकजी अनामीन और झैली अनामीन के बीच दूसरी चीज न लिखी जाए। जैसे आपने मरकजी उन्वान डाला, फिर नीचे झैली उन्वान डाला, उसके दोनों बीच आपने बिस्मिल्लाह रहमान लिख दिया या बिस्म ही ताला लिख दिया, ये लिखना सही नहीं होगा। मरकजी उन्वान के बाद जब नीचे आप झैली उन्वान डालेंगे तो उसके बीच में और कोई चीज नहीं लिखेंगे, ना अपना नाम, ना किसी और चीज, ना बिस्मिल्लाह, ना अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की जो कुछ लिख रहे हैं उसके नीचे लिखेंगे आप। ठीक है, तो मरकजी अनामीन और झैली अनामीन के बीच दूसरी चीज ना लिखी जाए। नंबर 4 लिखिए, मरकजी अनावीन का खत सबसे ज्यादा नुमाया होना चाहिए। मरकजी अनावीन का खत, अब अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे क्या करते हैं कि मरकजी उन्वान को 24 का फॉन्ट दे दिया, ठीक है, और उसके बाद जो झैली अनामीन होते हैं उसको 20 का दे दिया, और उसके बाद जो आपका मेन मैटर होता है उस मैटर को आपने 18 में कर लिया या 16 में कर लिया या 15 में कर लिया। ये तरीका होता है इस पे करने का, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। लेकिन जब आप किताब को भी तैयार करा रहे हो तो ये बातें मलहूज रहनी चाहिए आपके। ठीक है, कापी में लिखे तो भी, किताब आप खुद अपने हाथ से किताबत कर रहे हैं तो भी, कंप्यूटर से लिखवा रहे हैं तो भी, तरीक़ेकार एक ही रहता है। ठीक है, आलात के बदल जाने से तरीके और मकसद में उतनी ज्यादा तब्दीली नहीं होती है। तो मरकजी अनामीन का खत सबसे ज्यादा नुमाया होना चाहिए और झैली अनामीन का खत उससे कम होना चाहिए। ठीक है, और झैली अनामीन का खत उससे कम होना चाहिए। और मजमून के मतन का खत, यानी जो मतन, जो आपकी असल इबारत होगी, असल जो आपका मवाद होगा, असल जो आपकी तहरीर है, मुसव्वदा या मुबय्यज़ा है, वो मजमून के मतन का खत झैली अनामीन से कम होना चाहिए। ठीक है, झैली अनामीन से और कम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि आपका मरकजी उन्वान अगर 24 फॉन्ट के फॉन्ट में है तो आप झैली उन्वान को 20 के फॉन्ट में कर दीजिए, असल किताब को 15 या 16 में कर दीजिए। ये सब काम, बहुत काम की चीजें हैं बोली साहब, इसको हवा में मत लीजिए। और मजमून के मतन का खत झैली अनामीन से कम होना चाहिए, और हाशिए का खत और ज्यादा छोटा होना चाहिए। हाशिए का खत क्या है? जैसे आप हाशिया लिख रहे हैं, तो अगर आपने अपनी किताब का जो असल इबारत का जो आपने फॉन्ट दिया है वो आपने 16 दिया है, तो आप उसको 12 कर दीजिए। हाशिए में जो आप इबारत नकल कर रहे हैं, हवाले दे रहे हैं, किसी मुसन्निफ का तारुफ करा रहे हैं, किसी किताब का तारुफ करा रहे हैं, किसी लफ्ज की वजाहत कर रहे हैं, लुगवी तशरीह कर रहे हैं, जो भी आप हाशिया के अंदर लिखें उसका खत और छोटा कर दें। ठीक है, तो उसको आप 15 14 कर सकते हैं, 12 13 कर सकते हैं। इतना भी ना हो कि बीना आदमी भी ना देख पाए लिखा क्या है। समझ रहे हैं? हाँ, इतना नहीं बारीक होना चाहिए। तो हाशिए का खत और छोटा होना चाहिए। अगर आप हवाला मतन के साथ नकल कर रहे हैं, कभी होता ना कि हवाले मतन के साथ ही होते हैं, अगर आप हवाला मतन के साथ नकल कर रहे हैं
تو اس کا خط متن کے برابر ہونا چاہیے، تو اس کا خط متن کے برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر حاشیہ میں لکھ رہے ہیں تو چھوٹا ہونا چاہیے، یعنی اگر متن کے ساتھ ہے تو متن کے فونٹ میں رہے گا، حاشیہ میں ڈال رہے تو حاشیہ کے فونٹ میں رہے گا، بات بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب اس کے علاوہ بھی لوگ کرنے لگے، جیسے دینیات، فائن ٹچ کی جو کتابیں شائع ہوتی ہیں دینیات کی، وہ لوگ عبارت کے ساتھ ہی حوالہ دیتے ہیں، لیکن حوالے کے فونٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا تجدد ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، کسی کے اوپر رائے کو تھوپا نہیں جا سکتا، ہندوستان آزاد ہے، وہ بھی آزاد ہے۔ تو لکھا آپ نے، اور حاشیے میں لکھے تو چھوٹا ہونا چاہیے، اور اگر بالکل آخر میں لکھ رہے ہیں تو متن کے حساب سے لکھیں۔ حاشیہ لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو بالکل آخر میں بھی نقل کرتے ہیں نمبر ڈال کر، جیسے آپ فتویٰ کیسے دیں، اس کے اندر دیکھیے آپ کہ اس میں جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں جن مصنفین کا تعارف وہ آخر میں لکھا گیا ہے، تو اس کو متن کے حساب سے لکھیں گے، یعنی جو فونٹ متن کا ہوگا وہی فونٹ، ارے فونٹ سمجھ رہے ہیں نا، خط، جو خط اس کا رہے گا، جو رسم الخط اس کا ہوگا وہی رسم الخط اس کا بھی رکھیں گے۔ تو یہ چار باتیں آپ مبیضہ کے اندر بطور خاص دھیان میں رکھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات کیا میں لکھائی کہ دو چاروں جانب حاشیہ چھوڑیں گے، دوسری بات پیراگراف کی پہلی لائن میں 2 الفاظ کے بقدر جگہ چھوڑ کے پھر لکھیں گے، تیسری بات مرکزی عناوین کو 20 سطر کے یعنی 20 سینٹر میں لکھیں گے، بیچ میں لکھیں گے، اور ذیلی عناوین کو داہنی جانب لکھیں گے۔ چوتھی بات یہ کہ فونٹ سے متعلق ہے، مرکزی عناوین کا سب سے زیادہ فونٹ ہوگا، پھر ذیلی عناوین کا ہوگا، پھر آپ کی اصل عبارت کا ہوگا، پھر حاشیے کا فونٹ رہے گا۔ اتنی بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی مشاہد؟ نمبر 5 لکھیے، نمبر 5، مضامین میں پیراگراف ضرور قائم کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے شروع کیا، اوپر سے لکھنا شروع کیا، نیچے تک کے لے کے چلا آ رہا ہے، جیسے آپ نے پرانے زمانے کے فتاوی تاتار خانیہ دیکھیا، یا اسی زمانے جو پرانے فتاوی ہندیہ، اس میں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کتاب شروع کہاں سے ختم کہاں پہ ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پیراگرافنگ نہ ہونے سے بڑی دقت ہوتی ہے، جو آپ کا مطلوبہ مواد بعد میں ملتا ہے، سر کا درد پہلے مل جاتا ہے، ایک کے ساتھ ایک فری۔ تو مضامین میں پیراگراف ضرور قائم کرنا چاہیے، اور ایک بات ایک پیراگراف میں ضرور مکمل ہو جانی چاہیے، ایک پیراگراف میں مکمل ایک بات آنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کی بات ادھوری رہی پیراگراف میں چینج کر دیا، پیراگراف میں آپ کی مکمل بات آنی چاہیے، پیراگراف بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، میڈیم ہونا چاہیے، 5 لائن 6 لائن 8 لائن 7 لائن 4 لائن اس طریقے سے۔ اب آپ 2 لائن کے پیراگراف بنا رہے ہیں یا 20 لائن کے پیراگراف بنا رہے ہیں تو بہت عجیب لگے گا وہ۔ تو ایک بات ایک پیراگراف میں ضرور مکمل ہو جانی چاہیے، پیراگراف نہ طویل ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ ارے پیراگراف جانتے نا، اقتباس، جو آپ کے اقتباسات ہوتے ہیں وہ 4 لائن کے 5 لائن کے 6 لائن کے 7 لائن کے ایسے ہونے چاہیے، نہ بہت لمبا ہو نہ بہت مختصر ہو، نہ اتنا مختصر ہو کہ مشورہ ہو جائے اعلان ہو جائے، اور نہ اتنا لمبا ہو کہ بیان ہو جائے، تبلیغ جماعت کے حوا ہمارے بولتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 6 لکھیے، بہت اہم چیز یہ بھی ہے، اگر مضمون میں اعداد اور گنتیاں ذکر کرنی ہوں، اگر مضمون میں اعداد اور گنتیاں ذکر کرنی ہوں تو 100 تک کا عدد الفاظ میں لکھا جاتا ہے، 100 تک کا عدد الفاظ میں لکھا جاتا ہے، جیسے 70 آیا تو 70 آپ انکوں کے بجائے، ڈیجٹ کے بجائے لفظوں میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو 100 تک کا عدد الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ 80 آیا تو اس کو ڈیجٹ یعنی نمبر کے بجائے آپ اس کو الفاظ میں لکھیں، لیٹرز میں لکھیں۔ اگر مضمون میں اعداد و گنتیاں ذکر کرنی ہو تو 100 تک کا عدد الفاظ میں لکھا جاتا ہے، اور 100 سے زیادہ ہونے کی صورت میں گنتی میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کو 300 لکھنا ہے، 305 لکھنا ہے، 1000 لکھنا ہے، 2000 لکھنا ہے، تو پھر آپ گنتیوں کا یوز کریں، اور 100 کے اندر ہے
99, 98, 70 है, 80, 11 है, 12, 15 है, तो उसको क्या करें, आप अल्फाज की शक्ल में लिखते हैं। तो क्या बताया, अगर मजमून में आदाद और गिनतियां जिक्र करनी हो तो 100 तक का आदद अल्फाज में लिखा जाता है और 100 से ज्यादा होने की सूरत में गिनती में लिखा जाता है। अलबत्ता अलबत्ता अगर पैराग्राफ के शुरू में ही गिनती आए तो लफ्जों में लिखना चाहिए। जैसे आपको लिखना कि 1992 की बात है, तो इसका बेहतर तरीका ये कि आप इसको उर्दू में लिखेंगे कि 1992 की बात है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया रोनुमा हुआ। अब चूंकि आपका पैराग्राफ खुद 1992 से शुरू हो रहा है, तो फिर उसको क्या है, अल्फाज में लिखना चाहिए। हालांकि ये 100 के बाद का नंबर है, 100 के बाद का नंबर, 100 के ऊपर का नंबर है, लेकिन क्योंकि पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां से, तो गिनती के बजाय अल्फाज में लिखना चाहिए। अब आजकल तो लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो मजाक सलीम रखते हैं, जो असल तरीक़ाकार है वो यही है कि आप गिनती में कहाँ पे लिखेंगे, लफ्जों में कहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अलबत्ता अगर पैराग्राफ के शुरू ही में आए तो लफ्जों में लिखना चाहिए। नंबर 7, सफा नंबर कहाँ पे डालेंगे आप, सफा नंबर कहाँ पे डालेंगे साहब। नंबर 7 लिखिए, सफा नंबर सफे के बीच में, अरे बीच समझते हैं, बिल्कुल बीचों बीच नहीं, ऊपर का बीच। हाँ, फिर मानो बिल्कुल बीच में डालना शुरू कर दिया जगह छोड़ छोड़ के। तो सफा नंबर सफे के बीच में या सफे के बाएं जानिब लिखना चाहिए। सफा के बाएं जानिब लिखना चाहिए। सफा नंबर लिखने के सिलसिले में आजकल ये उसूल है, सफा नंबर लिखने के सिलसिले में आजकल ये उसूल है कि सरे वरक में ना लिखा जाए, बल्कि नीचे की तरफ बॉर्डर पर लिखा जाए। नीचे का जो बॉर्डर होता है उस पर, ज्यादातर किताबें आप देखिए जो शाये हो रही हैं उनमें गिनतियां नीचे ही डाली जा रही हैं। खैर आपको इख्तियार है, ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस जमाने का मिजाज ये बन गया। बतौर खास अरबों के यहाँ जो शाये हो रही किताबें, तो ऊपर उनके यहाँ किताब किताब का नाम और फसल या बाब रखते हैं और नीचे गिनतियां डालते हैं, तो इस तरीके से पूरी किताब मुहित हो जाती है। अच्छा, नंबर 8, एक बात और लिखिए। नंबर 8, मजमून में अगर किसी का इक्तिबास नकल करना हो, समझ रहे हैं, किसी का इक्तिबास नकल करना हो, मसलन आप एक किताब तहरीर लिख रहे हैं, उसमें मौलाना नूर आलम खलील अमीनी साहब का इक्तिबास आपको बड़ा अच्छा लगे, उसको आप नकल करना चाहते हैं, या मौलाना अलीमिया का कोई इक्तिबास नकल करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, या अल्लामा कश्मीरी का कोई बहुत अच्छा इक्तिबास उसको आप नकल करना चाहते हैं, तो क्या कैसे करेंगे। मजमून में अगर किसी का इक्तिबास नकल करना हो तो उसको उसको उसकी इबारत को हौज की शक्ल में लिखना चाहिए। हौज की शक्ल जानते हैं, वो हौज जिसमें पानी भरा जाता है। फिर समझो कि अब हौज कहाँ ढूंढने जाएंगे। हौज का मतलब ये है कि बीच के अंदर लिखते हैं, दोनों जानिब अच्छी खासी जगह छोड़ देते हैं। हौज की शक्ल को समझना हो तो किताबुल फतावा देख लीजिए। किताबुल फतावा में जितनी अरबी बातें नकल की गई हैं, या जितने सवालात नकल किए गए हैं, या किसी की इबारतें नकल की गई हैं, वो सब हौज की शक्ल में लिखी गई है, समझ रहे हैं। बिल्कुल बीचों बीच में लिखते हैं, दोनों जानिब अच्छा खासा जगह छोड़ देते हैं, उसको हौज बोलते हैं। तो जब किसी का इक्तिबास नकल करें तो हौज की शक्ल में लिखना चाहिए। फिर इक्तिबास को वावेन से घेर देना चाहिए। वावेन जानते हैं, इस तरीके से होता है वावेन, ये है, ये देखो मैंने इसको वावेन से घेरा है, वावेन से घेर देना चाहिए, ये देखिए, वावेन से घेर देना चाहिए। घेरने से क्या फायदा होगा कि मालूम होगा कि दूसरे का इक्तिबास है। ठीक है, तो किसी का इक्तिबास नकल करें तो अव्वलन काम क्या करेंगे कि उसको हौज की शक्ल में लिखेंगे, दूसरे इसको वावेन से घेर देंगे। बैनल कौसैन दूसरी चीज है, मैं बैनुल कौसैन नहीं बता रहा हूँ, वावेन बता रहा हूँ। कौसैन दूसरी चीज, हम बाद में बताएंगे आपको, शायद वो कल या परसों आएगा।
बताएंगे कौसैन कहाँ पे लगाते हैं, माकूफैन कहाँ पे लगाते हैं, और वावेन कहाँ पे लगाते हैं, सवालिया निशान कहाँ पे लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहाँ पे लगाते हैं, वो सब बताएंगे हम। समझ रहे हैं? एक एक और लिख लीजिए, फिर चलते हैं खाना खाने नमाज पढ़ने के लिए हम लोग। नंबर 9, जिस जुबान में आप तहरीर लिख रहे हैं, जिस जुबान में आप तहरीर लिख रहे हैं, अगर किसी लफ्ज का सही तलफ्फुज उस जुबान में अदा नहीं होता हो, अगर किसी लफ्ज का सही तलफ्फुज उस जुबान में अदा नहीं होता हो, तो उस लफ्ज के बाद कौसैन में उस नुक्ते को, उस लफ्ज को लिख देना चाहिए। तो कौसैन के बाद, लफ्ज के बाद कौसैन में उस लफ्ज को लिख देना चाहिए। जैसे एक लफ्ज तो इस्तेमाल होता है पंक्चुअली, सुना होगा आपने पंक्चुअली। अब उर्दू में पंक्चुअली पढ़ लिखोगे आप, तो अक्सर लोग कोई इसको पिंक्चुअली पढ़ेगा, कोई पुंक्चुअली पढ़ेगा, कोई पंक्चुअली पढ़ेगा, कोई पकंचली पढ़ लेगा। मतलब हर तरीके से लोग पढ़ सकते हैं उसको। तो अब आगे क्या करें कि उसके पंक्चुअली है वो अंग्रेजी में भी कौसैन के दरमियान लिख दें, ताकि आदमी उर्दू वाला भी धोखा ना खाए, अंग्रेजी वाला भी धोखा ना खाए। अंग्रेजी वाला समझ जाएगा कि ये लफ्ज ये इस तरह पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? सडनली अगर आपने लिखा सडनली, अब वो सडनली को सडनली पढ़ेगा, सडनली सिडनली सुडनली। और कुछ लोग तो ये कहेंगे कि बकरे की नल्ली है ये। तो इसलिए सडनली को अभी आप, मतलब इस तरह जो अल्फाज है उसको लिख देना चाहिए, ताकि महसूस अगला आदमी पढ़ सके, वरना लोग उसको कौन कौन सी नल्ली पढ़ लेंगे। बहरहाल वो तो बताया। तो उस लफ्ज को के बाद कौसैन में उस लफ्ज को असल जुबान में लिख देना चाहिए। इसी तरह अगर अपने अल्फाज में किसी इस्तिलाह का तर्जुमा करना चाहते हैं, इसी तरह अगर अपने अल्फाज में किसी इस्तिलाह का तर्जुमा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इबारत उस लफ्ज को बयान नहीं कर पा रही है, लेकिन आपकी इबारत उस लफ्ज को बयान नहीं कर पा रही है, तो उसको भी कौसैन में घेर देना चाहिए। जैसे लफ्ज उर्फ ले लीजिए। अब उर्फ को आप समझाना चाहें तो मुश्किल होता है कि उर्फ क्या समझाए लोगों को। ऐसे अब इस्तेहसान आपको समझाना कि कयास जली को कयास खफी पर तरजीह कयास जली पर कयास खफी को तरजीह हासिल होती है। अब ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा कहना क्या चाहते हैं, तो उसको भी कौसैन से घेर देना चाहिए, ताकि मालूम हो कि ये आपकी अपनी ज़ाती तशरीह है, और ये ऐन मुमकिन है कि इसकी तशरीह में और ज़्यादा तिवालत पाई जाती हो, इसकी तशरीह में और ज़्यादा वसाअत पाई जाती हो। समझ रहे हैं? तो उसको भी कौसैन से घेर देना चाहिए। एक नंबर और लिख लीजिए, 10 नंबर लिख लीजिए, फिर उसके बाद छोड़ते हैं, बाकी 11 12 आगे बाद में लिख लेंगे। नंबर 10, अगर आप कुरान मजीद की किसी आयत या हदीस को नकल कर रहे हो, अगर आप कुरान मजीद की आयत या हदीस को नकल कर रहे हो, तो सूरत नंबर, आयत नंबर और हदीस नंबर जरूर लिखना चाहिए। तो सूरत नंबर, आयत नंबर, या सूरत का नाम भी लिख सकते हैं, सूरतुल माइदा आयत नंबर 30। सूरत का नाम भी लिख सकते हैं, उससे तायन हो जाती है। सूरत का नाम या नंबर और आयत नंबर, और हदीस है तो हदीस नंबर भी जरूर लिखना चाहिए, ताकि आदमी को वहां तक आपके हवाले तक पहुंचने में आसानी हो। ठीक है, बस आज का दर्स यहीं पे समाप्त।